Hello friends, this is Karthikeya Singh working as an assistant professor at the School of Management Sciences Varanasi, and we are into this third unit of business research method, and we have already covered this scaling measurement techniques, problems in measurement in management research, validities, reliability and practicality. We have already covered levels of management. We are going to cover in this particular lecture video. So let's move ahead. Again, let me select the main marker, and in this I'm going to select this one as the color choice. Now in measuring one device, some mapping rule and then translate the observation of property indicates using this rule. For each concept or construct, several types of measurements are possible. The appropriate choice depends on what you assume about mapping the rules. So in measuring one device, some devices some mapping rule and then translate the observation of property indicates using this rule. ये कहना चाह रहे हैं कि ये जब भी किसी पर्टिकुलर मेजरमेंट करना चाहते हैं उसके लिए एक मैपिंग रूल बनाते हैं किसी पर्टिकुलर नंबर्स के लिए, और बाद में उसी पर्टिकुलर फ्रेमवर्क को वो ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टी और इंडिकेट्स यूजिंग दिस रूल, जो भी उस ऑब्जर्वेशन की प्रॉपर्टी होती है उसके साथ उस पर्टिकुलर मैपिंग को वो इंडिकेट करते हैं. फॉर ईच कंसेप्ट और कंस्ट्रक्ट सेवरल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स आर पॉसिबल. एक ही तरह के कंसेप्ट कंस्ट्रक्ट के लिए कई तरह के मेजरमेंट पॉसिबल हैं. द अप्रोप्रिएट चॉइस डिपेंड्स ऑन व्हाट यू अज्यूम अबाउट मैपिंग द रूल्स. इसलिए अप्रोप्रिएट चॉइस जो आप मैपिंग का बना रहे हो, जो चूज कर रहे हो, वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने मेजरमेंट के समय क्या अज्यूम किया हुआ है. तो ऐसे अजम्पशन के बेसिस पे मैपिंग रूल तय की जाती है और मैपिंग के बेसिस पे नंबर्स को ये डिफरेंट स्केल्स असाइन किए जाते हैं. तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर अजम्पशन के बेसिस पे किसी नंबर के साथ चीजों को असाइन कर रहे हैं और उसको कौन से स्केल में आप कंसिडर करते हैं. आगे एग्जांपल्स आएंगे तो उस पर ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको. Mapping rules have 4 assumptions, so we are going to cover it one by one. Third one, and this one is the fourth one. First one says numbers are used to classify group or sort responses. No order exists. Number are used to classify group or sort responses. No order exists. In this, they usually try to classify the group or sort the responses in particular categories. So categorization is being done in this assumption, and no order exists. Means we are not concerned about the performance. We are just going to identify things, and if this basic criteria is going to be fulfilled, the scale which is going to be associated with it would be called as nominal scale. Second one is numbers are ordered. In the first one, no order exists. In the second one, number are ordered and one number is greater than, less than or equal to another number. In this assumption, the number are going to be ordered and these number can be greater than, less than or equal to with the other number. So we are here going to rate or order numbers which have assigned to certain categories or people, but here your performance associated with that category will come into picture. So we can say that here we can order in terms of performance, and we can segregate into greater than, less than or equal to, because here ordering has become important, and this particular scale is later on called as ordinal scale. Third one is differences between the numbers are ordered. In this, what is the difference between two performances is not clear, but here difference between numbers are ordered and difference between any pair of numbers is greater than, less than or equal to the difference between any other pairs of numbers. Means here we usually rate things and we categorize things into different intervals so that we can measure the difference between different performances. So different categories will be made, and what is the difference between those categories is going to be justified in this, and this particular scale assumption is going to be considered as interval scale.
Final one is the number series has a unique origin indicates by the number 0. Means if you talk about interval and if you are going to measure temperature, then chances are there we may go into the negative direction. So no zero, absolute zero is there if you are measuring temperature, and several equidistant measurement can be done, like of 10 centigrade or 10 Fahrenheit degree centigrade. So if those difference are uniform throughout the scale, it is going to be considered in interval scale, but there won't be any kind of zero, defined zero, absolute zero in that interval scale. But in terms of ratio, absolute zero will exist. Absolute, what do you understand by absolute zero? Like your height can never be zero. Your weight can never be a zero, because these scales or these particular entities have an absolute zero. From there they usually start measuring things. So in ratio, this particular assumption is again going to be considered as ratio scale. So absolute and meaningful 0 point exist in this. So if you trying to reiterate or revise things, बोलते हैं पहला नंबर जो क्लासिफिकेशन के लिए और सॉर्टिंग के लिए काम आता है और कोई ऑर्डर एग्जिस्ट नहीं करता, तो ऐसे चीजों को हम नॉमिनल स्केल बोलते हैं. यहाँ पे जहाँ पे परफॉर्मेंसेस को ऑर्डर कर दिया जाता है और उस ऑर्डर कर दिए जाने के बाद उनको हम ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल में हम इक्वल टू में क्लासिफाई कर पाते हैं, तो वैसे स्केल को ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं. तीसरा होता है डिफरेंस बिटवीन नंबर्स आर ऑर्डर्ड. जो परफॉर्मेंसेस में डिफरेंस होते हैं उनको हम एक ऑर्डर में रख लेते हैं, क्रम में रख लेते हैं कि वो किस इंटरवल में फॉल कर रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस किस तरह से कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, और उनके डिफरेंस बिटवीन पेयर्स ऑफ नंबर्स ग्रेटर देन, लेस देन, और उसमें जो पेयर हम बनाते हैं स्केल में उसको हम ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन में हम डिवाइड कर सकते हैं और अदर पेयर से इनको कंपेयर भी कर सकते हैं. इसी तरह से नंबर सीरीज हैज ए यूनिक ओरिजिन. अब इस वाले एजम्पशन में बोलते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो आपको एग्जिस्ट करेगा एक स्केल में जहां से आप चीजों को मेजर करेंगे. यही चीज इंटरवल स्केल में नहीं होता. इंटरवल स्केल में आप टेम्परेचर का एग्जांपल लोगे तो आप जीरो से नीचे भी जा सकते हो, लेकिन अगर वेट की बात करो, आप हाइट की बात करो, और डिफरेंट रेटिंग स्केल्स में हम लोग जब जहां पे जीरो, एब्सोल्यूट जीरो कंसीडर करते हैं और वहां जब मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं, तो ऐसे ओरिजिन में एब्सोल्यूट जीरो एग्जिस्ट करता है और ऐसे स्केल रेशियो स्केल्स कहे जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. लेट्स इरेज ऑल these markers first and move further. And now we are trying to consider an example and explain things for you. Suppose your professor asks to student volunteer to test 6 candy bars. This is your assignment. Like your professor or your teacher has asked to test 6 candy bars. आपसे 6 candy bars को टेस्ट करने के लिए बोला जाता है. Student begins by evaluating each on chocolate, non-chocolate scale, चॉकलेट और नॉन चॉकलेट स्केल. अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उसको चॉकलेट और नॉन चॉकलेट में डिवाइड कर देते हैं. नॉट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, वो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है इसके बेसिस पे नहीं, सिर्फ कैटेगराइज करते हैं कौन चॉकलेट बेस्ड है और कौन चॉकलेट बेस्ड नहीं है. अगर ये बेसिक कैटेगराइजेशन है जिससे उसके परफॉर्मेंस का या उसके टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे चीजों को हम यहाँ पे नॉमिनल स्केल कंसिडर करते हैं. तो ये नॉमिनल स्केल में, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कैटेगराइजेशन किया जा रहा है और इसको चॉकलेट और नॉन चॉकलेट में डिवाइड किया जा रहा है जिसका इसके परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं, तो ऐसे स्केल को हम नॉमिनल स्केल बोलेंगे. सेकेंड वन, स्टूडेंट रैंक्स द कैंडी बार्स फ्रॉम बेस्ट टू वर्स्ट. दिस इज एन ऑर्डिनल स्केल. अब उसी कैंडी बार को स्टूडेंट्स बेस्ट टू वर्स्ट में कैटेगराइज कर देते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट करते हैं. टेस्ट करने के बाद यहाँ चॉकलेट नॉन चॉकलेट में सिर्फ कैटेगराइजेशन के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के बेसिस पे बेस्ट टू वर्स्ट वो रैंक करते हैं. बेस्ट टू वर्स्ट रैंक करने के बेसिस पे चूंकि यहाँ पे रैंकिंग आ गई और परफॉर्मेंस आ गया, अब ये स्केल ऑर्डिनल स्केल कहा जाएगा. फिर नेक्स्ट वाले में द स्टूडेंट यूजेस 7 point स्केल. 7 point scale and has equal distance between points to rate the candy bars with the regards to some test criterions. Some test criterion, that is crunchiness. This is an interval scale. Now the same rating
earlier was done from base to worst. Now these people have created प्रॉब्लम विद द प्रीवियस स्केल वाज कितना बेस्ट है और कितना वर्स्ट है, उस स्केल से आपको निकल के नहीं आ रहा, मतलब कि बेस्ट से वर्स्ट तक जाने में उनकी स्केलिंग डिफरेंशियलिटी क्या है ये पता नहीं चल रहा। लेकिन अगर मैं 7 पॉइंट स्केल डिफाइन कर दूं और डिजाइन कर दूं और उसमें मैं बोलूं कि इनको मैं टेस्ट क्राइटेरियन क्रंचीनेस के बेसिस पे 7 पॉइंट स्केल पे हाईली क्रंची, लेस क्रंची और नेग्लिजिबल क्रंचीनेस, ऐसे मैं 7 पॉइंट स्केल बना दूं और क्रंचीनेस को मैं मेजर करूं, तो मैं बताना चाह रहा हूं कि इन 7 पॉइंट स्केल जो मैंने क्रिएट किया है वो हर स्केल में हर पॉइंट का दूसरे पॉइंट से 1 पॉइंट का डिफरेंस है। 7 से 6 के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस, 6 से 5 के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस, 5 से 4 का 1 पॉइंट का डिफरेंस, ऐसे सारे स्केल को हम लोगों ने इक्वी डिस्टेंट स्केल के रूप में डिफाइन किया हुआ है। और इसी वजह से इस इक्वी डिस्टेंट स्केल को हम लोग इंटरवल स्केल में कंसिडर करते हैं। और ये जो चीजें क्लियर होके ऑर्डिनल स्केल में कि कोई परफॉर्मेंस बढ़िया है या बुरा है, उसमें जो चीजें क्लियर होके नहीं निकल के आ पा रही थी वो क्रंचीनेस या फिर स्केल बना देने से वो चीजें एग्जैक्टली पता चल जाती हैं कि फर्स्ट स्केल से दूसरे स्केल के बीच का डिफरेंस क्या है, और दोनों के बीच का डिफरेंस परफॉर्मेंस मेजरमेंट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। और ऐसे स्केल को ही हम लोग इंटरवल स्केल और इंटरवल मेजरमेंट बोलते हैं। लास्ट वन इज द स्टूडेंट कंसिडर अनदर टेस्ट डायमेंशंस एंड असाइन 100 पॉइंट्स अमंग 6 कैंडी बार्स, दिस इज रेशियो स्केल। नाउ अब वही स्टूडेंट क्या करते हैं, अनदर टेस्ट डायमेंशन को उसमें 100 पॉइंट असाइन करते हैं 6 कैंडी बार्स को जो आपको टेस्ट के लिए दिया गया। वो स्टूडेंट 6 कैंडी बार्स को 100 पॉइंट स्केल पे लिखते हैं। अब चूंकि 100 पॉइंट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो है, जीरो से वो 100 स्केल करेंगे। वर्स्ट वाले को हो सकता है 10 दे दे, 5 दे दे, लेकिन एकदम जीरो तो नहीं दे सकते। तो स्केल जो मैंने क्रिएट किया रेशियो वाले में, वो मैं एब्सोल्यूट जीरो को इंक्लूड करते हुए 100 पॉइंट का स्केल क्रिएट कर दिया। और ये 0 से 100 के बीच में कुछ भी रेट किया जा सकता है, जो टॉप नॉच होगा या फिर हाईली ग्रेडेड होगा वो 100 के आसपास होगा, जो बिल्कुल वर्स्ट वाला होगा तो वो 10 to 12 के बीच में होगा। तो इन इन इसी स्केल में जहां पे एब्सोल्यूट जीरो आ गया और यहाँ पे हम अपने असाइनमेंट में एब्सोल्यूट जीरो को इंक्लूड करके कैंडी बार्स को रेट करने लग गए, तो ऐसे स्केल को हम लोग यहाँ पे रेशियो मेजरमेंट स्केल कंसिडर करेंगे। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल लिया जाएगा तो आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अलग अलग बुक्स में चीजें अलग तरीके से डील कर गई हैं। तो कई बार इन चीज को डील करने में कंफ्यूजन रह जाता है कि मेजरिंग, बिकॉज it is very important and this once you are going to get this question for sure, means not a single year is there where this question was not asked. So in one way or the other this question will keep, university is going to keep on asking these questions again and again. So far they have asked every year in some form or the other, but measurement scale remains there in their question. So prepare it very well so that you can answer those questions, because this question is going to be asked for sure. Means it is a very rare occasion when university is not going to ask these questions. So have firm knowledge about this, and due to which you will be able to answer these questions in the university examination. Now through this animation I'll try to explain things for you, but first let me now in the first picture itself, these are the 4 scales. I have already given the basic definition, and one example has already been discussed about candy bar. Now different example I have taken to clarify things. आप एक रेस पे 4 पार्टिसिपेंट दौड़ते हैं, जस्ट this one is the first participant, second participant, third participant and fourth participant. Use this spotlight. This is the first participant, second participant, third participant and fourth participant, and this is their jersey mark or jersey number. Jersey number 20 is given to first participant, jersey number 30 is given to the second participant, jersey number 40 is given to the third participant, jersey number 50 is given to the fourth participant. Now as we are interested in giving just identity to these participants, the scale which we are going to use would be nominal scale, because it has nothing to do with their performance.
20 is just an arbitrary number provided to candidate number 1, 30 is an arbitrary number provided to candidate number 2, 40 is the arbitrary number provided to candidate number 3, and 50 is the arbitrary number provided to candidate 4. इनको ये नंबर आर्बिट्ररी प्रोवाइड किया गया है इनके जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए, ताकि इस नंबर का इनके परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा जब रेस होता है तो एक जर्सी नंबर होता है सब सामने में नंबर से, वो जर्सी नंबर से उनका परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं रहता। शुरुआत में मान लीजिए 400 जर्सी नंबर है और वो जीत जाता है, तो 400 जस्ट उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए दिया जाता है। इसी तरह आपके क्लास रोल नंबर में, क्लास रोल नंबर अगर अल्फाबेटिकली आपको दिया गया है, रोल नंबर 1 ए से स्टार्ट हो रहा है और रोल नंबर 100 जेड तक जाता है, तो अगर उसमें आपको जो रोल नंबर असाइन किया गया है वो रोल नंबर से आपके परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं, तो वो जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए और कैटेगराइजेशन के लिए दिया गया है। तो वैसे स्केल को हम लोग नॉमिनल स्केल बोलेंगे। यहाँ पे उसी तरह से जो आर्बिट्रेरी नंबर दिया गया इन एथलीट्स को, वो आर्बिट्रेरी नंबर नॉमिनल स्केल कंसिडर किया जाएगा। नाउ लेट्स टेक द सेम एग्जांपल। अब यहां पे ध्यान दीजिए, अब ये जर्सी नंबर 20, 30, 40 दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद इनकी कोई रैंकिंग आती है। अब फॉर एन एग्जांपल आप यहां पे लो, 20 जर्सी नंबर 4th रैंक पे रहता है, 50 जर्सी नंबर 3rd रैंक पे रहता है, 40 नंबर 2nd रैंक पे रहता है और 30th जर्सी नंबर रैंक 1 हो जाता है। तो अब ये जो मैंने 1, 2, 3, 4 नंबर असाइन किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस, ये मेरा ऑर्डिनल स्केल बोला जाएगा। 1, 2, 3, 4 on the basis of their performance I am segregating it, or if I am segregating this number on the basis of their performance, that means we are considering it as an ordinal scale. Ordinal scale क्या करता है, ये सारे एथलीट दौड़ते हैं, दौड़ने के बाद जर्सी नंबर 4th पे, जर्सी नंबर 50 3rd पे, जर्सी नंबर 40 2nd पे, जबकि यहाँ पे देखो स्टार्ट करने के समय आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, लेकिन यहाँ दौड़ने के बाद मैंने इनको ऑर्डर पे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे लगा दिया। तो ये जो ऑर्डर के बेसिस पे इनका जो रैंक आया और उसको मैंने ऑर्डर पे लगा दिया, ये ऑर्डर उनके परफॉर्मेंस से रिलेट करता है। तो ऐसे ऐसे स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल बोलते हैं। अब आगे इंटरवल को समझते हैं। एनिमेशन में थोड़ा सा लैग है, ये पीछे हो गया, लेकिन इट विल गिव यू सम क्लैरिटी। नाउ इंटरवल स्केल, अब यहाँ पे चूंकि ये 1st, 2nd, 3rd, 4th पोजीशन डिफाइन हो चुकी, तो इंटरवल स्केल को अगर मैं 0 to 10 के स्केल में मैं बांट दूं, 0 आर्बिट्ररी है, यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 भी नहीं है, तो 10 के स्केल में फर्स्ट वाले का परफॉर्मेंस मान लीजिए उस स्केल पे 9.5 था, दूसरे वाले का जो 2nd रैंक पे है वो 9.1 था, उस स्केल पे उसके परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। 8.2 था 3rd वाले का और 7 था 4th वाले का। अब यहाँ पे चूंकि 1st, 2nd से, ऑर्डिनल में क्या है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th वो पता चल गया, लेकिन आपको ये नहीं पता चला कि 1st वाले से 2nd कितना पीछे था, 2nd वाले से 3rd कितना पीछे था, 3rd वाले से 4th कितना पीछे था। तो अगर ये डिफरेंस पता नहीं है तो ऑर्डिनल से सिर्फ आपको रैंक तो पता चलेगा, लेकिन उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं पता चल पाएगा। जबकि रेशियो में क्या है, अगर रेटिंग स्केल मैंने क्रिएट कर दी 0 to 10 के और उसमें मैं रेट कर देता हूँ सबके परफॉर्मेंस को, तो मुझे पता चल जाए कि 9.5 9.1 से कितना आगे है, 9.1 8.2 से कितना आगे, 8.2 7 से कितना आगे है। तो इससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये मेरा जो स्केल है जिसको मैंने 0 to 10 के स्केल में परफॉर्मेंस को ग्रेड कर दिया, उनका रैंक, उनको एक ऑर्डर दे दिया, तो वो मेरा इंटरवल स्केल कहा जाएगा। और कई बार ऐसे इक्विडिस्टेंस इंटरवल स्केल भी क्रिएट कर दी जाती है, जैसे 1 to 2 सेकंड, 2 to 3 सेकंड, 3 to 4 सेकंड, 4 to 5 सेकंड, 5 to 6 सेकंड, 6 to 7 सेकंड, 7 to 8 सेकंड। अब इनमें और 8 to 9, 9 to 10 सेकंड, ऐसे 1 सेकंड का एक एक डिफरेंस आ रहा है और इनमें से किसका परफॉर्मेंस कहाँ पे फॉल कर रहा है, वो उस इंटरवल स्केल में भी उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को अगर डाल दें तो पता चल जाएगा कि कौन से ग्रेड में कितने डिफरेंस के साथ उनका परफॉर्मेंस रहा है। और यही खासियत है इंटरवल स्केल की। आगे बढ़ते हैं रेशियो स्केल में। अब रेशियो स्केल की क्या खासियत है, रेशियो स्केल सेम परफॉर्मेंस आपके आ चुके, सेम परफॉर्मेंस आने के बाद अब इनके टाइम फिनिश को मैं इसके साथ कोरिलेट करता हूं। तो फर्स्ट वाला मान लीजिए 13 सेकंड का समय लगा था, दूसरा 14, तीसरा 15 और चौथा
16 सेकंड का टाइम लग रहा है। ये मैंने चूंकि आर्बिट्रेरी नंबर लिया है, इसको रैंक के साथ कोरिलेट करके मत देखिएगा, नहीं तो अगर आप मेजरमेंट के स्केल में रखें तो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। ये मैंने आर्बिट्रेरी नंबर दे दिया आपको समझाने के लिए। तो 13 सेकंड, 14 सेकंड, 15 सेकंड एंड 16 सेकंड, ये मैं रेशियो स्केल में ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे अब पता करना है कि एग्जैक्ट परफॉर्मेंस का डिफरेंस क्या है। अगर मैं पूछूं कि ये कितना आगे है इससे, तो मैं 13 और 14 का रेशियो निकाल सकता हूं। मैं 13 का 15 के साथ रेशियो निकाल सकता हूँ, 13 का 16 के साथ। तो हर परफॉर्मेंस का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम रेशियो निकाल के उसके परफॉर्मेंस को एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। अभी आपका हो गया रेशियो स्केल। क्यू रेशियो स्केल, टाइम जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, फिनिश टाइम, टाइम टू फिनिश यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया आपके लिए। तो ये जो टाइम फ्रेम मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये जीरो टाइम कभी भी जीरो से नीचे नहीं, एब्सोल्यूट जीरो उस पर होता ही होता है। तो अगर 13 सेकंड है तो वो जीरो से स्टार्ट करके 13 तक पहुंचा है, 14 है तो जीरो से स्टार्ट करके 14 तक पहुंचा है, 15 है तो जीरो से स्टार्ट करके पहुंचा, और इसी तरह से 16 में भी सेम चीजें इसी तरह से हो रही है। तो इस वजह से इसे रेशियो स्केल में रखा जाता है, और सबसे रॉबस्ट स्केल रेशियो स्केल ही माना जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लो आप। नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको दी जाती है। नॉमिनल स्केल आपको आइडेंटिफिकेशन देता है, जैसे जर्सी नंबर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया गया, तो जर्सी नंबर मेरा नॉमिनल स्केल हो गया। ऑर्डिनल, आपने परफॉर्मेंस दिया, सब लोग दौड़े, दौड़ने के बाद एक रैंक आई, और रैंक करने के बाद मैंने उनको रेटिंग कर दी उनके रैंक के बेसिस पे। तो जो मैंने रैंकिंग दी उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे, वो ऑर्डिनल स्केल हो गया। और इंटरवल स्केल में मैंने उनके लिए एक स्केल क्रिएट करी जो इक्वी डिस्टेंस है, और उस पे 0 to 10 के स्केल पे सबको ग्रेडिंग कर दी कि पहले वाले का परफॉर्मेंस 9.5, दूसरे का 9.1, 8.2 और 7। तो इससे मुझे ग्रेडिंग एक पर्टिकुलर स्केल पे, जो 0 to 10 और 0 to 10, 0 to 1, 0 to 2 ऐसे करके 10 पॉइंट के स्केल में इक्वी डिस्टेंस स्केल भी क्रिएट किया जा सकता है। वहां पे भी इनके परफॉर्मेंस को गेज किया जाता है। तो ऐसे में जहां पे जीरो आर्बिट्रेरी हो और एब्सोल्यूट जीरो ना हो, वैसे चीज को आप आगे चल के स्केल में कन्वर्ट करते हैं, तो ये इंटरवल स्केल बोला जाएगा। और लास्ट वन, जहां पे एग्जैक्ट टाइम को मैं मेजर करके वहां पे मेंशन कर रहा हूं, क्योंकि इसमें एब्सोल्यूट जीरो इन्वॉल्व है, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो इन्वॉल्व है। और एब्सोल्यूट जीरो इन्वॉल्व होने की वजह से यहाँ पे अगर हम किसी चीज का रेशियो भी निकालते हैं तो पॉसिबल होता है। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो अगर डिफाइंड नहीं है, जैसे टेम्परेचर वगैरह में हम लेते हैं, और स्केल को मैंने जीरो से डिफाइन करके नहीं बनाया हुआ है अगर एब्सोल्यूट जीरो से, तो वहां पे रेशियो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं बनता। लेकिन यहाँ पे आप 13 को 14 के साथ, 14 का 15 के साथ, 15 का 16 के साथ रेशियो निकाल के आप सबके परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो। और ये सबसे रॉबस्ट रेशियो स्केल माना जाता है, जिसमें सारे तरह के मैथमेटिकल ऑपरेशंस पॉसिबल है। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन से कुछ निकलेगा, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन हो पाएगा, और यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पॉसिबल हो पाएगा। तो मुझे लगता है थोड़ी बहुत क्लैरिटी आएगी आपको इससे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि नॉमिनल स्केल क्या है, ऑर्डिनल क्या है, इंटरवल क्या है, और रेशियो क्या है। अब यहां से स्टार्ट करते हैं। स्पॉटलाइट, मुझे लगता है मार्कर विल हेल्प मोर। नॉमिनल स्केल, this one is for nominal scale, and this is the lowest level of measurement. This is the lowest level of measurement. Here numbers are assigned for the purpose of identification of the object. मैंने पहले भी स्लाइड में डिस्कस किया, यहाँ पे नंबर आपके आइडेंटिफिकेशन और कैटेगराइजेशन के लिए असाइन किए जाते हैं, इस वजह से इसे नॉमिनल स्केल बोला जाता है। एनी ऑब्जेक्ट विच इज assigned a higher number is in no way superior to the one which is assigned a lower number. Interesting thing, any object which is assigned a higher number is no way superior to the one which is assigned a lower number. यहाँ बोलते हैं कि जो भी नंबर असाइन किया गया है, जिसको हायर नंबर असाइन किया गया है, जरूरी नहीं कि जो हायर नंबर असाइन किया गया वो किसी तरह से जो लोअर नंबर असाइन किया गया उससे सुपेरियर होगा। यहाँ नंबर से आपके परफॉर्मेंस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए। जैसे रोल नंबर 14, क्लास का रोल नंबर आपका 14 है और रोल नंबर 1, तो ये सिग्निफाई नहीं करता कि रोल नंबर 1 रोल नंबर 14 से ब्रिलियंट है या कम ब्रिलियंट है। इस नंबर का सिर्फ और सिर्फ उनके आइडेंटिफिकेशन से लेना देना है, उनके परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब यही बच्चे आपस में जब एग्जाम के बाद अपना स्कोर कैलकुलेट करेंगे और स्कोर के बेसिस पे इनकी रैंकिंग बनेगी, तो वो ऑर्डिनल स्केल में चल जाएगा, वहां पे इनके परफॉर्मेंस का लेना देना होगा।
लेकिन चूंकि रोल नंबर को हम आइडेंटिफिकेशन के लिए रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये चीजें सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए रख लेंगे, इसलिए स्टेटमेंट इसने यूज किया है, हायर नंबर इज नो वे सुपेरियर टू द वन विच इज असाइन टू अ लोअर नंबर। यहाँ पे जो हायर नंबर असाइन होता है नॉमिनल स्केल में, वो किसी भी तरीके से परफॉर्मेंस को इंडिकेट नहीं करता, और उसका ये मतलब कतई नहीं है कि जिसको हायर नंबर दिया गया है वो अच्छा परफॉर्मेंस है, और जिसको लोअर नंबर दिया गया है वो लेस परफॉर्मेंस है। तो इसका नंबर का आपके परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नंबर से नहीं रहता है, इस वजह से ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके नॉमिनल स्केल का। आगे, इन द नॉमिनल स्केल देयर इज एन स्ट्रिक्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द नंबर एंड द ऑब्जेक्ट्स। अब इस चीज को समझाने के लिए बोलते हैं कि स्ट्रिक्ट 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, मतलब नंबर्स के बीच में और स्केल के बीच में, और नंबर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स, जो नंबर हम असाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट के बीच में 1-to-1 रिलेशनशिप रहता है। इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया हुआ, उसको एक करके समझाता हूँ। आपको आगे चल के ये प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। जैसे आप एसपीएसएस पे यूज करते हो, आप एक्सेल पे जाते हो, तो एसपीएसएस और एक्सेल पे काम करने के लिए ये चारों स्केल बहुत ज्यादा काम करते हैं। आपको कैटेगोरिकल डाटा, नॉन कैटेगोरिकल डाटा को जब नॉमिनल, ऑर्डिनल वगैरह स्केल में आपको आइडेंटिफाई करके और जब एसपीएसएस पे कैलकुलेशन पे डालोगे, तो ये चीजें आगे चल के हेल्प करेंगी। तो मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ नॉमिनल स्केल का। अब मैं जैसे मार्केटिंग है, मार्केटिंग को मैंने यहाँ पे 1 नंबर असाइन कर दिया, टेक्स्ट बॉक्स यूज करता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने इसको मार्केटिंग को 1 कर दिया, देन एचआर को 2 कर दिया, देन इनको 3 कर दिया, देन ऑपरेशंस को 4 कर दिया, देन फाइनेंस अकाउंटिंग को 5 एंड अदर्स को 6। अब यहाँ पे चूंकि मैंने मार्केटिंग को 1, एचआर को 2, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 3, ऑपरेशंस को 4, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग को 5 एंड एनी अदर को 6 मैंने नंबर असाइन कर दिया। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि इफ वी आर एडमिनिस्ट्रेटिंग दिस क्वेश्चनर टू 100 पीपल, मैं 100 लोगों को ये क्वेश्चनर सर्कुलेट करता हूँ, और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट डू यू वर्क, आप किस डिपार्टमेंट में आप काम करना चाहते हो। उन 100 लोगों में से कितने मार्केटिंग को ऑप्ट करेंगे, कुछ एचआर को ऑप्ट करेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को ऑप्ट करेंगे, कुछ ऑपरेशंस को ऑप्ट करेंगे, कुछ फाइनेंस को, और कुछ अदर इनके अलावा भी कुछ स्पेशलिटी होगी या फिर स्पेशलाइजेशन होगा, उनको ऑप्ट कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि सिस्टम में जब आप मार्केटिंग को काउंट करने के लिए बोलिएगा स्ट्रिंग ऑपरेशंस में, तो स्ट्रिंग में ये मार्केटिंग को सिस्टम काउंट नहीं करेगा, लेकिन अगर आप 1 असाइन कर देंगे मार्केटिंग को, तो क्वेश्चनर में कितने बार 1 आया ये एसपीएसएस काउंट कर लेगा, कितनी बार 2 आया ये एसपीएसएस काउंट कर लेगा, कितनी बार 3 आया वो एसपीएसएस काउंट कर लेगा, लाइकवाइज अदर्स नंबर्स को वो काउंट कर लेगा। इससे क्या होता है कि यहाँ पे जो मैंने मार्केटिंग को नंबर 1 असाइन किया, ये इस बेसिस पे नहीं किया कि मार्केटिंग बहुत ज्यादा परफॉर्मर है, या 2 किसी भी हालत में इंफेरियर है मार्केटिंग से, या 3 उससे ज्यादा इंफेरियर है। ये सिर्फ इसलिए किया कि इनको एक आइडेंटिफिकेशन दिया जा सके, और उस आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पे कितने वो हैं, मार्केटिंग वाले कितने हैं, एचआर वाले कितने हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले कितने हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकाला जा सके। तो ये बेसिकली इनका पर्पस क्या है, आइडेंटिफिकेशन देना। मार्केटिंग को आइडेंटिफिकेशन के लिए मैंने 1 दे दिया, एचआर को 2 दे दिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को 3 दे दिया। ऐसे ही आइडेंटिफिकेशन आपको एसपीएसएस ऑपरेशंस में या एक्सेल ऑपरेशंस में डेटा एनालिसिस के समय करना पड़ेगा। जब मैं डेटा एनालिसिस यूनिट में आऊंगा तो आपको एक एक चीजें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, एसपीएसएस पे भी और एक्सेल पे भी। लेकिन यहाँ आप बेसिकली समझिए कि नॉमिनल स्केल पढ़ रहे हैं, नॉमिनल स्केल जस्ट आपको आइडेंटिफिकेशन की क्वालिटी दे रहा है, एंड इट हैज नथिंग टू डू विद द परफॉर्मेंस। यहाँ पे जो भी स्केलिंग की गई सब 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। अब यहाँ पे ये जो मैंने पॉइंट बताया था 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नंबर्स एंड ऑब्जेक्ट्स, तो मार्केटिंग का 1 के साथ एसोसिएशन जब मैंने एक बार क्रिएट कर दिया, तो ये थ्रू आउट द रिसर्च डेटा कलेक्शन 1 ही रहेगा। अब 1 को आप 2 के साथ 2 को 3 के साथ 3 को 4 के साथ इंटरचेंज नहीं कर सकते। ये जो भी कोरिलेशन रहेगा, कोई एसोसिएशन रहेगा, ये 1-to-1 रहेगा। मार्केटिंग का 1 के साथ ही रहेगा, एचआर का 2 के साथ ही रहेगा। तो ये 1-to-1 कोरिलेशन और 1-to-1 एसोसिएशन थ्रू आउट आपके रिसर्च में रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं।
Again change the marker. Each number is assigned to only one object and each object has only one number assigned to it. सेम एग्जांपल में चलते हैं. मार्केटिंग को हम बोलते हैं एक ऑब्जेक्ट को एक ही नंबर असाइन होगा और एक नंबर को एक ऑब्जेक्ट, मतलब वाइस वर्सा, मतलब एक नंबर को एक ऑब्जेक्ट असाइन होगा और एक ऑब्जेक्ट को एक नंबर असाइन होगा. तो दोनों केसेस में 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा. एक पर्टिकुलर आइटम को हम सिर्फ एक नंबर ही असाइन करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के रूप में दिखाया है. फिर बोलता है कि इट मे बी नोटेड दैट इट इज ऑब्जेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. अब यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव को समझिए. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव किसको बोलते हैं? मतलब एक कॉइन टॉस किया, उस पे दोनों के हेड और टेल आने के साइमल्टेनियस चांसेस बिल्कुल भी नहीं है. अगर आप टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और हेड और टेल आने के चांसेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली नहीं आ सकते. तो इसको बोलेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. दूसरी तरफ से यहाँ पे बोलता है एक कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. अब कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव, आप एक एग्जांपल लीजिए. लूडो खेलते वक्त हम डाइस फेंकते हैं, उस पे 6 फेसेस होते हैं और 6 पे 6 नंबर्स होते हैं. अब वो कौन सा नंबर आएगा उसके चांसेस आप प्रोबेबिलिटी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन उसके प्रोबेबिलिटी में कौन कौन से नंबर आएंगे? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा. So it is a collection of all probable data which will fall between 1 to 6. So वो सारे कलेक्टिवली जो सैंपल क्रिएट होंगे, 1 to 6 आने के जो चांसेस होंगे, उसको कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव कैटेगरीज बोला जाता है, जिसमें 1 to 6 सारे प्रोबेबल नंबर्स होंगे. तो मेरे ख्याल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जहां पे हेड और टेल इवेंट के रूप में, और दूसरी तरफ से कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव मतलब जहां पे डाइस वाले एग्जांपल से कोरिलेट करके आप अच्छे से समझ सकते हैं. अब यहाँ पे इसको कोरिलेट करें, जो मैंने एग्जांपल लिया हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जो 1 है वो 2 नहीं हो सकता, जो 2 है वो 3 नहीं हो सकता, 3 है 4 नहीं हो सकता. तो ये मैं बोल सकता हूँ जो नंबर हम असाइन करते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है, एक नंबर दूसरे को हम नहीं दे सकते. फिर बोलता है कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. ये 6 नंबर जो मैंने यहाँ पे असाइन किए हुए हैं, ये 6 नंबर आपस में म्यूचुअली कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि सब सारे, अगर प्रोबेबिलिटी ली जाएगी तो उसमें बोलेंगे मार्केटिंग के सेलेक्ट होने के, एचआर के होने के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के होने की, ये 6 प्रोबेबिलिटी हैं. ये 6 नंबर जो मैंने असाइन किए, ये 6 प्रोबेबिलिटी और 6 नंबर इंक्लूड किए जाएंगे. तो ये बेसिक कंसेप्ट है नॉमिनल डाटा का. तो नॉमिनल डाटा जो भी होगा उस पे डाटा सेट जो नंबर्स हम असाइन करेंगे वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होने के साथ साथ कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी होगा. अब दोनों एग्जांपल से क्लियर हो गया. अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है कि नंबर्स कैन नॉट बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाई और डिवाइडेड. ये सबसे कमजोर स्केल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स के साथ नंबर्स को आप ऐड नहीं कर सकते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे रोल नंबर 3 को 4 से डिवाइड किया, रोल नंबर 3 को 4 से ऐड किया तो 4 3 7 होगा, लेकिन इस 7 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. ऐसा नहीं है कि रोल नंबर 3 और 4 को ऐड किया तो रोल नंबर 7 निकला, वो 7 वाले रोल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा. इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं रहता. तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी जो नंबर आएगा उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, मल्टीप्लाई करोगे उसका भी कोई सर्टिफिकेट, डिवीजन करोगे आप तो उसका भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा. तो ये इसीलिए दिस पर्टिकुलर स्केल इज बीइंग कंसीडर्ड एज द वीकेस्ट स्केल, जहां पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल नहीं होता. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए नॉमिनल स्केल को यूज किया जाता है. आगे बढ़ते हैं. Erase all these things and then we'll move further. Now we are into this ordinal scale. Ordinal scale को फिर से वही मार्कर यूज करके 1 by 1 करते हैं. And then this is the next higher level of the measurement than nominal scale. कहते हैं कि ऑर्डिनल स्केल जो है वो नॉमिनल स्केल से एक हायर लेवल का मेजरमेंट स्केल है. दिस इज द नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ नॉमिनल स्केल. तो ये नेक्स्ट हायर लेवल है नॉमिनल स्केल का. यहाँ पे चीजें थोड़ी सी और ज्यादा डिफाइंड हो जाती, बहुत ज्यादा डिफाइंड नहीं होती, लेकिन उस नॉमिनल स्केल से ज्यादा चीजें डिफाइंड हो जाती. अब यहाँ पे
one of the limitation of nominal scale measurements is that we cannot say whether the assigned number to an object is higher or lower than the one assigned to another option. नॉमिनल स्केल के साथ सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि आपने जो नंबर असाइन किया उस नंबर के असाइन करने से उससे ये नहीं पता चलता कि जो हायर नंबर है और लोअर नंबर है उस पे कौन बड़ा है या कौन छोटा है, उससे मतलब हमारे परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं होता। तो नंबर जो आप असाइन कर रहे हो उसका कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं होता, सिर्फ वो आइडेंटिफाई करता है कि एक पर्टिकुलर नंबर किसी को असाइन कर दिया तो वो उसका जस्ट आइडेंटिफिकेशन रहेगा। जैसे 400 मैंने जर्सी नंबर किसी एथलीट को दिया और 800 नंबर किसी दूसरे को दिया, तो ऐसा नहीं है कि 800 का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस है और 400 का बहुत बड़ा परफॉर्मेंस नहीं है। तो ये दोनों जस्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए चीजें हैं, और यही लिमिटेशन भी है नॉमिनल स्केल का। अब नेक्स्ट इट सेज एनी an ordinal scale measurement tells whether an object has more or less characteristics than some other objects. ऑर्डिनल स्केल क्या बताता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट का हैज मोर और लेस कैरेक्टरिस्टिक्स देन अदर स्केल, जो जिस कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर में हम काम कर रहे हैं। ऑर्डिनल स्केल जो नॉमिनल स्केल नहीं बता पाता था कि वो कौन सा बढ़िया है, कौन सा मतलब ज्यादा अप्रोप्रिएटली आगे है या पीछे है, या परफॉर्मेंस अच्छा है या बुरा है। तो ऑर्डिनल स्केल सर्व्स दिस पर्पस। ऑर्डिनल स्केल मेजरमेंट आपको बताता है कि कौन सा परफॉर्मेंस अच्छा है और कौन सा बुरा है, जिस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप मेजर करना चाह रहे हो। अब आपके सुविधा के लिए आई हैव ऑलरेडी एडेड दिस टू एग्जांपल्स। एट्रीब्यूट, मैंने रेस्टोरेंट का एग्जांपल लिया एंड आई हैव आस्क्ड वन रेस्पोंडेंट टू रेट दिस rate a particular restaurant on the basis of food quality, price, menu variety, ambience and service. Suppose he gives let's use the text box, erase it first. एक आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। फूड क्वालिटी को उसने दिया 1, प्राइस को उसने दिया 2, मेन्यू को दिया 3, एम्बियंस को दिया 4 एंड सर्विस को दिया 5। अब ये चलिए इसे निगेट कीजिएगा। हाँ, इसे निगेट कीजिएगा। ये फूड क्वालिटी 1, 2, 3, 4, 5 इरेज कर देते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स से फिर से आप ऐड कर लो। दिस वन इज 5। अब 1, 2, 3, 4, 5 उसने रैंक फूड क्वालिटी के बेसिस 1, प्राइस के बेसिस पे 2, मेन्यू वैरायटी के 3, एम्बियंस, इसको रैंक कर रहे हैं। वो रैंक उसके हिसाब से जो परफॉर्मेंस है रेस्टोरेंट का उसके बेसिस पे रैंक कर रहे हैं। फूड क्वालिटी पे बेसिस पे ही थिंक्स दैट नंबर 1 क्वालिटी इज देयर। प्राइस के बेसिस पे ही थिंक्स इसको रैंक सेकंड पे रखा जाता है। मेन्यू वैरायटी पे बेसिस पे ही थिंक्स इट कैन बी केप्ट एट 3, एम्बियंस 4 एंड सर्विस क्वालिटी में 5। अगर ये रैंक्स इनके परफॉर्मेंस से कुछ लेना देना है तो ये आपको बताता है फूड क्वालिटी में नंबर 1 है, प्राइसेस में नंबर 2 है, मेन्यू वैरायटी में 3 है, 4 है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस को आप ग्रेड कर सकते हो कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किस किस पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन सा रैंक रहा है। तो यहाँ इनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो नंबर असाइन किए गए, इसी स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कर सकते हैं। दूसरी तरफ टू व्हीलर को भी सेम एग्जांपल के साथ आप कर सकते हो। एट्रीब्यूट है, रैंक है, आप रैंक करते हो। कई बार सम कांस्टेंट सम रैंक स्केल आता है कि 100 स्केल दे दिया, आपको बोलेगा सबको जोड़ के आपको 100 कैलकुलेट करके लाना है। तो यू विल गिव 20 टू दिस, 30 टू दिस, देन 35 टू दिस एंड remaining to these two. So total overall ranking would come from this, and on the basis of their score you can say that this one is the number 1 choice, this one is the second choice, third choice, fourth choice or fifth choice on the basis of their score given by the any particular respondent. तो टू व्हीलर के रिस्पोंडेंट को आफ्टर सेल सर्विस प्राइस रीसेल वैल्यू पे अगर मैं रैंक करता हूं तो वो रैंक उनके ऑर्डर के बेसिस पे करता हूं, उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे करता हूं। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर स्केल इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज ऑर्डिनल स्केल, बिकॉज यहाँ पे चीजों को आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे ऑर्डर में किया जाता है। जैसे मैंने रेस ट्रैक वाला एग्जांपल दिया था, वहां पे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पे जितने भी ट्रैक एंड फील्ड में पार्टिसिपेट कर रहे थे उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे हमने चीजों को रैंक कर दिया था। नाउ मूव फर्दर।
दिस इज द इंटरवल स्केल. अब इंटरवल स्केल को कवर करते हैं. इंटरवल स्केल, इट टेक्स केयर ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द ऑर्डिनल स्केल. प्रॉब्लम विद द ऑर्डिनल स्केल was it takes care of the limitation of the ordinal scale measurement, where the difference between the score on the ordinal scale does not have any meaningful interpretation. Like, we have ranked on the basis of performance, but how far these ranks are different. Like, the first rank holder is how far different from rank second, and how far is your rank third. उनके बीच का जो डिफरेंस है उसका कोई भी सिग्निफिकेंस ऑर्डिनल स्केल से नहीं निकल के आ पाता. रैंक 1 पे जो आया उसके परफॉर्मेंस को रैंक 2 के साथ कितने डिफरेंस है, 2 के साथ थर्ड का कितना है, थर्ड के साथ फोर्थ का कितना है, ये रैंक आपके उस पर्टिकुलर ऑर्डिनल स्केल से नहीं निकल के आ पाता. तो अगर ये स्केल आपका ऑर्डिनल स्केल से नहीं निकल पाता तो इसी कमी को दूर करने के लिए हम लोगों ने इंटरवल स्केल को कंसीडर करते हैं. अब इंटरवल स्केल क्या करती क्या है? इन इंटरवल स्केल द डिफरेंस ऑफ स्कोर ऑन द स्केल हैज मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन. अब यहाँ पे जो आपके परफॉर्मेंस के में जो स्कोर का डिफरेंस होगा, इट हैज सम मीनिंग. कैसे मीनिंग है? कि आप किसी पर्टिकुलर स्केल पे किसी कैंडिडेट के परफॉर्मेंस को रखते हैं और दूसरे परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं. मेजर करने के बीच बाद दोनों के डिफरेंस को पता करते हैं तो पता चलता है एक्चुअली फर्स्ट वाला सेकंड वाले से कितने डिस्टेंस पे था, सेकंड वाला थर्ड वाले से कितने डिस्टेंस पे था, या फिर टाइम टेकन बाय फर्स्ट और टाइम टेकन बाय सेकंड के बीच में क्या डिफरेंस था, टाइम टेकन बाय सेकंड टू थर्ड के बीच में क्या डिफरेंस था, या फिर डिस्टेंस कवर में कितने समय सेकंड में कौन कितना डिस्टेंस कवर कर पा रहा था. ये चीजें अगर आप स्केल के ऊपर में डाल देते हो तो वो सारी चीजें जिस स्केल पे मेजर की जाएंगी वो इंटरवल स्केल कहा जाएगा. It is assumed that respondent is able to answer those questions in continuum scale. आप रैंक को एक कंटिन्यूम स्केल में मेजर करके डालते हैं. दैट मीन्स दिस कंटिन्यूम ऑफ स्केल इज गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज इंटरवल स्केल. लास्ट वन, नंबर्स ऑन दिस स्केल कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड. तो इंटरवल स्केल में जितने भी चीजें होती हैं उनको हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन अगर सब जीरो डिफाइंड नहीं है, एब्सोल्यूट जीरो डिफाइंड नहीं है, तो अगर डिवाइड करते हैं तो उसका कोई सिग्निफिकेंस निकल के नहीं आता है. अब एक कंटिन्यूम का एग्जांपल ले लिए. जैसे मैंने 3 एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए. तो फर्स्ट वन इज, हाउ इंपॉर्टेंट इज प्राइस टू यू व्हाइल बाइंग ए कार. आपके लिए प्राइस का क्या इंपॉर्टेंस है? अब यही अगर रैंक रहता तो ये 1 2 3 4 रैंक ऑर्डर कर दिया जाता तो आपको पता नहीं चलता कि लिस्ट इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट कितना दूर है, इंपॉर्टेंट से न्यूट्रल कितना दूर है, न्यूट्रल से इंपॉर्टेंट कितना दूर है और मस्ट कितना दूर है. लेकिन अगर इसको मैंने कंटिन्यूम में स्केल के थ्रू डिफाइन कर दिया तो अब मैं बता सकता हूं लिस्ट इंपॉर्टेंट से 1 पॉइंट का डिफरेंस है, न्यूट्रल का इंपॉर्टेंट से 1 पॉइंट का डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट का न्यूट्रल से 1 पॉइंट का डिफरेंस है, 4 का 5 से 1 पॉइंट का डिफरेंस है. तो इस कंटिन्यूम पे आप जहां भी टिक करते हो, मान लो लिस्ट इंपॉर्टेंट कहीं भी क्लिक करते हो, तो यू कैन जस्टिफाई योर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली. और यहाँ पे आपको इस कंटिन्यूम पे एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलता है कि फर्स्ट से सेकंड की दूरी, सेकंड से थर्ड की दूरी, थर्ड से फोर्थ की दूरी. चूंकि इस कंटिन्यूम में आपको इक्वी डिस्टेंट स्केल क्रिएट करके दिया गया है, इसी तरह से और भी परफॉर्मेंस जो होते हैं उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं. अब नेक्स्ट वन इज, हाउ डू यू रेट वर्क एनवायरनमेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन. इसी तरह से 5 से 4 के बीच में, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, ये इक्वी डिस्टेंस स्केल है और इस पे हम एग्जैक्टली बता सकते हैं कि इनके बीच में परफॉर्मेंस डिफरेंस क्या है, या किसी पर्टिकुलर ऑप्शन को चूज करने में उससे दूसरे वाले का डिफरेंस क्या आता है. थर्ड वन इज द रेट द लाइफ ऑफ द बैटरी ऑफ योर इन्वर्टर. अपने बैटरी लाइफ को आप रेट कर रहे हो लो से हाई के बीच में, लेकिन लो से हाई के बीच में 5 स्केल्स हैं और सारे स्केल्स एक एक पॉइंट से डिफर कर रहे हैं. अगर आप लो और हाई को रैंक करते तो लो और हाई के बीच में कितने का डिफरेंस है ये क्लियर नहीं होता. लेकिन अगर आप कंटिन्यूम स्केल में अगर इनको रेट करना चाहते हो तो आप बता सकते हो लो और हाई के बीच में 5 पॉइंट का डिफरेंस है, और इसके बीच में अगर 2 मेजर करते हो तो लो और 2 के बीच में 1 पॉइंट का डिफरेंस है, और अकॉर्डिंगली ये 3 से 4 के बीच में, 4 से 5 के बीच में the same kind of unit difference is there. That's why it is going to be considered as interval scale. आगे बढ़ते हैं. Let's erase it.
then we'll move further. Now we are into the final ratio scale. In ratio scale, use this, and just to break the monotony, I'll change the color also. Now, ratio scale. In ratio scale, this is the highest level of measurement and takes care of the limitation of the interval scale measurement, where the ratio or measurement on the scale does not have a meaningful interpretation. In interval scale, because sub-zero was not there, or absolute zero was not there in an interval scale, this ratio scale is going to fulfill the negativity of or shortcomings of interval scale, because here absolute zero is going to be considered, and due to this absolute zero, absolute result is going to be considered, and division of all those measurements would be possible, and that's why this is the most robust scale and gives you the appropriate performance measure. The ratio scale measurement can be converted into interval, ordinal, and nominal scale. So this is the highest degree of scale, and it can be converted into interval, ordinal, and nominal scale. But the other way around is not possible. We cannot convert nominal into ordinal, ordinal into interval, and interval into ratio scale. So these three scales cannot be converted into ratio scale, but ratio scale can be converted into this nominal, ordinal, and because it incorporates all the features of nominal, ordinal, and interval scale. Ratio scales incorporate all the powers of previous scales plus provisions for absolute zero. This is the very important point. What is the difference between interval and ratio scale? This absolute zero. This absolute zero, or the origin of measurement, is the biggest difference between interval and ratio scales. In interval, no absolute zero is going to be incorporated. That's why division is not going to have certain significance in interval scale, but here zero is incorporated, and whichever scale we are going to use, it must be having some absolute 0 point, and absolute 0 points are possible in money value. Money cannot be negative. It must be having, it is going to start from 0 and onwards. Population counts, population cannot be 0 or negative. Distances cannot be negative. Return rate cannot be negative. Productivity rates, there must be certain starting point and amount of time used for any particular event. So in all these, absolute zero is going to be incorporated. If absolute zero is there, then those scales are going to be considered under ratio scales. I think आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ रही होगी. आप इन वीडियोस को रिपीट करेंगे तो आप और ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, और आगे चल के और भी एग्जांपल्स में कंसीडर करूंगा, इससे चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी. अब व्हाट इज द प्रॉब्लम? Let me shift my this cursor. After covering this, I'll move it to the original place. People usually confuse in interval and ratio scale. So I have segregated, and it will give you some clarity, because nominal or ordinal are very much easier to understand. Nominal is just for identity, and ordinal is going to give you the performance measurement. On the basis of your performance, we usually rank it. But how interval and ratio scales are different, so we are going to cover it here. All variables measured in an interval scale can be added, subtracted, and multiplied. You cannot calculate the ratio between them. आप इन चीजों को फिर से कंसिडर कीजिए. जितने वेरिएबल्स हैं इंटरवल स्केल में, उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो नहीं निकाला जा सकता. ये वेरिएबल प्रॉपर्टी बीच में कहती है. वहीं अगर आप रेशियो स्केल की बात करें, तो रेशियो स्केल क्या करता है? रेशियो स्केल हैज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटरवल स्केल. In addition, to be able to calculate ratios, that is, you can leverage the numbers on a scale against zero. Interesting thing. बाकी सारे ऑपरेशन जो इंटरवल करते हैं वो रेशियो भी करती है, लेकिन रेशियो स्केल में क्या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, यहाँ पे आप एक्चुअल रेशियोज निकाल सकते हो,
विथ एब्सोल्यूट जीरो, तो आप एब्सोल्यूट जीरो को इनकॉर्पोरेट करते हो तो एक्चुअल रेशियो भी निकाल पाते हो। तो सबसे ज्यादा रॉबस्ट परफॉर्मेंस आपको रेशियो स्केल से निकल पाता है। जबकि यहाँ पे समेशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, लेकिन रेशियो पॉसिबल नहीं है इंटरवल में। यहाँ पे रेशियो में वो डिवीजन भी पॉसिबल हो जाता है, जिसके वजह से आपको अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस मेजर रेशियो से ही निकल के आ पाता है। अब मैं अपने वीडियो वाले को ऊपर शिफ्ट करता हूँ, टैब को, इट विल हेल्प यू। कुछ मार्क्स आ जाते हैं वीडियो मूव करने से, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बेयर करेंगे और नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। अब एब्सोल्यूट जीरो पॉइंट के बारे में समझे। जीरो पॉइंट इन एन इंटरवल स्केल इज आर्बिट्ररी. It is not necessary that zero is going to be used. It is going to be considered as an arbitrary number. Zero in interval scale is arbitrary. For example, the temperature can be below 0 degrees Celsius into negative temperatures. Temperature can go up in negative direction also, means minus 0 degree, minus 4, minus 5, minus 7, minus 20, minus 40 degree centigrade is possible. तो वहां पे एब्सोल्यूट जीरो एब्सोल्यूट ना होके आर्बिट्ररी जीरो हो जाता है। लेकिन जहां से एब्सोल्यूट जीरो कंसीडर करते हैं रेशियो स्केल में, तो रेशियो स्केल हैज एन एब्सोल्यूट जीरो और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओरिजिन, जैसे हाइट, वेट, यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो चीजें कंसीडर की जाती हैं, ताकि हाइट आप जीरो से, जीरो कभी नहीं हो सकता, हाइट जीरो से कुछ ना कुछ, जीरो से स्टार्ट करके जो भी हाइट होगी आपकी मेजर की जाएगी। वेट जीरो से स्टार्ट करके उसमें एब्सोल्यूट जीरो होगा, उसके ऊपर के स्केल को आप मेजर कर पाएंगे। तो ये चीजें अगर आर्बिट्ररी ना होके एब्सोल्यूट होती हैं तो वो रेशियो स्केल बोला जाता है। तो ज्यादा रॉबस्ट कैलकुलेशन आपके पास रेशियो स्केल में आएगा, और थोड़ा सा लूजली बाउंड कैलकुलेशन आपको इंटरवल स्केल में आएगा। देन कैलकुलेशन की बात करें, स्टैटिस्टिकली एंड इंटरवल स्केल अरिथमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड। इंटरवल स्केल में अरिथमेटिक मीन पॉसिबल है, जबकि रेशियो स्केल में ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन इज ऑल्सो पॉसिबल। ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में निकालते हैं, क्योंकि हार्मोनिक मीन ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला ही रेशियो बेस्ड होता है। उसी तरह से मेजरमेंट की बात करें, ये तो हो गया कैलकुलेशन में अरिथमेटिक मीन इंटरवल स्केल के साथ, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन आपके रेशियो स्केल के साथ। मेजरमेंट की बात करें तो इंटरवल स्केल मेजर साइज एंड मैग्नीट्यूड एज मल्टीपल फैक्टर्स ऑफ ए डिफाइंड यूनिट। मेजरमेंट साइज करेगा, मैग्नीट्यूड मेजर करेगा और डिफाइंड यूनिट में मेजर करेगा, लेकिन अगर एब्सोल्यूट जीरो नहीं है तो आर्बिट्ररी ही होगा। जबकि रेशियो स्केल में क्या करेगा, मेजर साइज एंड मैग्नीट्यूड एज अ फैक्टर वन डिफाइंड यूनिट इन टर्म्स ऑफ अनदर। क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो होता है तो दूसरे एक के टर्म में दूसरे को अगर डिफाइन करना पड़े तो उसमें आप दोनों को कंपेयर करके एप्रोप्रिएट रिजल्ट निकाल सकते हो, और यही खूबसूरती है रेशियो स्केल की। फिर आप एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। एग्जांपल में द क्लासिक एग्जांपल ऑफ एन इंटरवल इज द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, like difference in temperature between 50 to 60, 50 degrees and 60 degrees is 10 degrees. This is the same difference between 70 to 80 degrees. इक्विडिस्टेंस स्केलिंग में मैंने बताया था कि 10-10 डिग्री का अगर डिफरेंस रख देते हैं, वहां पे हम इस इंटरवल स्केल में किसी चीज को मेजर करते हैं, तो उन मेजरमेंट में आप इंटरेस्टिंग क्या देखोगे कि जो 50 से 60 के बीच में 10 का डिफरेंस है, वही 70 टू 80 के बीच में डिफरेंस है। लेकिन वो 10 डिग्री का मीनिंग सेम नहीं निकल पाएगा, और यही प्रॉब्लम है इंटरवल स्केल के साथ। लाइक 50 टू 60 के बीच के 10 डिग्री टेम्परेचर के डिफरेंस में, 70 टू 80 के 10 डिग्री के डिफरेंस में मैथमेटिकली तो 10 डिग्रीज का डिफरेंस होगा, लेकिन यहाँ का 50 टू 60 के 10 डिग्री का डिफरेंस और 70 टू 80 के बीच का 10 डिग्री का डिफरेंस अलग अलग होगा। बट चूंकि एब्सोल्यूट जीरो हम टेम्परेचर में नहीं लेते हैं, तो ये दोनों 10 डिग्रीज मुझे बराबर लगेंगे, 50 टू 60 वाले भी और 70 टू 80 वाले भी। और यही प्रॉब्लम है इंटरवल स्केल के साथ। लेकिन जब हम रेशियो स्केल की बात करते हैं, रेशियो स्केल्स आर any variable that possesses absolute zero characteristics like age, weight, height, sales figures, etc. So इनके साथ आप डायरेक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो भी चाहें आप इनकॉर्पोरेट करके लगा सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई वे में पढ़ने के लिए मैंने एक और स्लाइड ऐड किया है, ताकि मैंने कंटेंट बहुत ट्रिम करने की कोशिश की है, लेकिन चूंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अलग अलग एंगल से आप नहीं समझेंगे तो आगे चीजों को इनकॉर्पोरेट करने में आपको प्रॉब्लम आएगी।
अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, दिस वन, स्केल मैथमेटिकल ऑपरेशंस. ये पूरा टेबल इट विल क्लैरिफाई योर ऑल योर डाउट्स. लाइक नॉमिनल, ट्रू जीरो इज नॉट पॉसिबल, equal intervals is not possible, order, we don't order things, categorization is possible, we categorize things here, we categorize in nominal scale. And marital state, sex, gender, ethnicity, we usually do it through nominal scales. So nominal scale has nothing to do with true zero value, equal intervals, ordering of any particular performance. This is just going to use for categorization like your marital status, married, non-married, male, female. Then ethnicity, a particular ethnicity can be categorized in different form of ethnicity can be categorized, but all these are having the purpose of categorization and identification only. This has nothing to do with their performances. That's why ordinal scale is the most insignificant, you can say. This calculation and everything is not possible in this. So this is the most loosely bound scale. Second one is the ordinal scale. Ordinal scale means no true zero is possible, no equal interval is possible, but here ordering is possible and categorization possible. uh, Ordering is possible means you can order things, but how far two performance are there, it is not going to be dealt with ordinal scale. So we have to go to interval scale because the difference in performance is not going to be justified. They just order things and they categorize things. So student letter grade, like your result, NFL team ranking. So these are the ordinal scales because we are ranking on the basis of their performance, but how far these performances are between each other, it is not going to be justified. उनके बीच में जो ग्रेडिंग है वो कितनी दूरी पे है, मतलब एक परफॉर्मेंस से दूसरे परफॉर्मेंस के बीच क्या डिफरेंस क्या है, ये ऑर्डिनल स्केल से नहीं निकल के आ पाता. अब बात करें इंटरवल स्केल की, तो यहाँ पे भी ट्रू जीरो इज नो, कोई ट्रू जीरो एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है. इक्वल इंटरवल्स होते हैं, पॉसिबल है इंटरवल में, क्योंकि आपको कंटिन्यूम स्केल बनाना होता है तो वहां पे आप यूज करते हैं. देन ऑर्डर देना इंटरवल में पॉसिबल, ऑर्डर एक पर्टिकुलर सीक्वेंस देना ऑर्डिनल स्केल में पॉसिबल होता है, और कैटेगराइजेशन इज पॉसिबल. यहाँ पे एग्जांपल के रूप में लेते हैं तो टेम्परेचर, फॉरेनहाइट, सैट स्कोर, जो सैट स्कोर निगेटिव भी जाता है, आईक्यू स्कोर भी निगेटिव जा सकता है, और ईयर पास्ड बाय, ये सारी चीजें आप इंटरवल स्केल में यूज कर सकते हैं. देन रेशियो स्केल, यहाँ पे ट्रू जीरो इज पॉसिबल, equal interval is possible, order is possible, and categorization is possible. Example can be age, height, weight, where absolute zero is incorporated. So this particular scale incorporates everything which is there and which can be converted into a proper ratio scale. So this is it. I think many of you will be able to understand some nitty-gritty of these four scales, and while using SPSS and other statistical tool, these four skills are going to be used again and again. आपको बार बार इन चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और जब आप SPSS पे डेटा एनालिसिस के लिए जाएंगे तो वहां पे बेसिक कैटेगराइजेशन इसी नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो के बीच में किया जाएगा. वहां पे नॉमिनल, ऑर्डिनल तो होता है, इंटरवल, रेशियो को उस पे स्केल के रूप में सिग्निफाई किया जाता है. जो जब SPSS डील किया जाएगा तो वहां पे मैं अच्छे से आपको बताऊंगा अभी. लेकिन यहाँ के लिए इतनी चीजें डिस्कस की कि इनको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे तो ये कम से कम चारों स्केल, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो, आपको क्लियर हो जाएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, and I have started using more and more Hindi so that more number of people can understand things. Thank you so much for watching.